However, the feasibility of establishing a zipline or cable car project in the area shall be assessed by the department. Part B, the development of these locations shall be taken up in future subject to the feasibility from the tourism standpoint and availability of resources. Part C, yes sir, Bijham and Limber Waterfall, Limber Wildlife Sanctuary are well known for adventure tourism. The steps taken so far by the Department for Holistic Development in the area are as under. 1. Department of Tourism doesn't directly operate paragliding activity. The said activity is operated on commercial lines by private adventure tourism operators. However, the department conducts capacity building programs for people who intend to become trainers and also registers and issues permission for paragliding as and when some eligible agency applies for the same. The said permission is issued only after carrying out the feasibility survey of the area. 2. Tourism Department does not possess land for setting up of camping colonies at reservoir area of Gantmula on the banks of River Jhelum. However, the department issues permissions for setting up of camping colonies in the said area, as and when some eligible agency applies for the same. 3. No residential huts have been constructed in these areas, and there is no such proposal under consideration presently. However, the Tourism Department has already created the below mentioned assets for the facilitation of tourists, visitors en route Baramulla to Islamabad, Uri. A. Development of Khadiniyar Park. B. Tourist cafeteria and TIC at Bonyar. C. Tourist cafeteria at Islamabad, Uri. D. TRC at Islamabad, Uri. E. Reconstruction of gutted cafeteria at Eco Park, Khadiniyar. D. At present, there is no such proposal under consideration with the department. However, the construction and development of the trekking routes shall be taken up in future subject to feasibility from the tourism perspective and availability of funds. और जैसे हम सुचेतगढ़ को डेवलप करना चाहते हैं, हमने देखा है कि बाकी जगहों पे भी बॉर्डर टूरिज्म को काफ़ी फ़रोग दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे बॉर्डर टूरिज्म को जो है वो फ़रोग दिया जाए, ताकि जिन हालातों से हम गुजरते हैं और जो हालात हमने देखे हैं पिछले 30 साल से बॉर्डर के लोगों ने, इसको एक डेवलप किया जाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है। जनाब, वहाँ काफ़ी शामलात की लैंड है, गैर मुमकिन लैंड है। अगर उस लैंड को लिया जाए, मैं आपके माध्यम से, आज चीफ मिनिस्टर साहब का जन्मदिन भी है, मैं इनको मुबारकबाद ही पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बॉर्डर टूरिज्म का जो है ये ऐलान करेंगे ऑन द लार्ज स्केल के उड़ी को एक बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म, तीनों टूरिज्म वहाँ पे हो सकते हैं। वहाँ बाबा फरीद है, बाबा रंगी इमाम है, बाबा काजी नाग है और उसके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारी लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हमारी काजी नाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ मारखोर पाया जाता है। ये रेयर स्पीसीज है जो सिर्फ और सिर्फ उड़ी में देखा गया है, इसको डेवलप किया जाए। आपकी सजेशन आ गई सर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक और बात जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद हैं, TRC इस्लामाबाद और कैफेटेरिया जो है इस्लामाबाद में है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब ट्रांस बॉर्डर यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हुआ, जो हमारा TRC इस्लामाबाद था उसको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को दिया गया और वहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ। कई सालों से ट्रेड बंद है। मैं आपके माध्यम से जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ और जनाब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, जब तक ट्रेड नहीं चलता है वो हमारा वो TRC इस्लामाबाद कैफेटेरिया भी बंद है और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो भी डिफंक्ट हैं। क्यों ना उनको हम टूरिज्म के मैप पे लाएं, क्यों ना हम टूरिज्म को दें, क्यों ना हम उसको सबलेट करें। और तीसरी बात जनाब, उस वक्त 2014 में 15 में बड़ी शान और शौकत के साथ इस्लामाबाद में सर TRC की वहां पे इनाग्रेशन की गई थी, फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, लेकिन उसकी बुनियाद के बाद, उसकी फाउंडेशन के बाद आज तक उस TRC इस्लामाबाद को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। तो मैं जनाब आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि इसको, इन दोनों चीजों को जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है उसको हैंडओवर किया जाए वापस, ताकि हम बॉर्डर टूरिज्म को फरोग दे सकें। आपकी सजेशन। सीजफायर मेंटेन होने के बाद ये इलाके अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म के लिए खुल गए हैं। मैंने पिछले दिनों सवाल के हवाले से केरन, मत्सिल, करना, गुरेज की बात की थी। आज उड़ी के हवाले से बात करूंगा और ये सही है कि हमने ये पाया है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का, टूरिस्टों का उड़ी जाने का जो है एक मन बन रहा है। वो वहाँ पे जाके अमन सेतु जो पुल है
वो देखना चाहते हैं, उसके सामने अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाए और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना होगा हम करेंगे। जो ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे मशवरा पेश किया, उन सब पे हम गौर कर लेंगे। चलो, थैंक यू।